Renaissance age is actually age of revival of classical knowledge, revival of classical arts and literature. And when we say classical arts and literature, we means Greek arts and literature. Literal meaning of Renaissance is rebirth and revival. And revival means revival of classical texts. Classical texts are actually dramas of Greek playwrights like Euripides, Aristophanes, Sophocles, Aeschylus, and Roman plays by Seneca, Plautus, Terence, Roman poetry of Horace, Virgil, Ovid, Roman history by Cicero. These are the classical texts which are retrieved, which are revived and circulated in Renaissance age. Its one reason can be invention and use of printing press, and printing press that came in England, and it also caused circulation of knowledge as at wider scale. Second, there was in Italy, there was a movement that is called pre-Raphaelites painters. Raphael was a painter, and the painter who was forerunner of Raphael's painting, they are called pre-Raphaelites painters. These pre-Raphaelites painters, they were concerned with humanism, and humanism became a central concern in paintings of Raphael and later on Da Vinci. तो ये इटालियन पेंटर्स थे जो इसकी रीजन बने। ये टर्क्स इन्वेजन थी, ये स्पेनिश लिटरेचर था, स्पेनिश नॉवल था जो यूरोप में सर्कुलेट हुआ, और इन सब ने एक ऐसी एज को जन्म दिया जिसको हम इल्म की तहरीक कहते हैं, रेनेसांस या निशात सानिया या बेदारी की तहरीक कहते हैं। रेनेसांस stands for high ambition, and high ambition means choose something for yourself that is apparently beyond your reach. Renaissance high ambition means outreaching spirit, Faustian urge, इंसान की नई नई एडवेंचर्स करना, that age is also age of question to dogma and faith, and promotion of इंक्वायरी और फ्री इंक्वायरी। क्वेश्चन की वजह से एक तरफ तो रिलीजन में रिफॉर्म्स हुई, जैसे हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर ने बोन
बाइबल की ट्रांसलेशन का ट्रेंड शुरू हुआ. Everyone can have access to Bible. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही. शेयर हो रही. Renaissance age is revival of classical knowledge, classical literature, classical arts. It stands for high ambitions and it stands for question to faith, reforms in religion, free inquiry. And that free inquiry gives birth to discovery and exploration. And we see that there was an astronomer, Copernicus, who challenged the medieval ideas of Ptolemy, a medieval geographer. Ptolemy believed that Earth is the center of universe. कायनात का मरकज ये जमीन है. But Copernicus proved that we are part of a solar system and sun is the center of solar system. All planets including earth revolve around the sun. So earth is not center. Earth is not stationary. It moves, it revolves around the sun. That was a great discovery. There were many other discoveries like blood circulation that was discovered by William Harvey, and you can say many geographical exploration like access to new world of America, new world of Australia, a vibrant contact with India. So that was the age of exploration, adventures, expansion, and in a way, beginning of colonialism as well. Humanism is central theme of this age that distinguishes this age from past. कि इंसान के ऊपर जोर दिया गया है, इंसान की तरक्की, उसके ख्वाब, उसकी जिंदगी के मकसद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और गॉड को जो कि पहले मिलेनियम में फोकस था उसको कम इंपॉर्टेंस दी गई. रेनेसांस में एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम देखते हैं दैट इज pragmatic approach. Like Italian political thinker, philosopher Machiavelli, who wrote the book The Prince, he introduced pragmatic approach of life, and pragmatic approach compromised सर morality. जी आवाज ठीक नहीं आ रही. Okay. जी सर आप कंटिन्यू. रेनेसांस के ट्रेंड्स की बात करते हुए मैंने पहला कहा कि ये रिवाइवल ऑफ क्लासिकल नॉलेज एंड लिटरेचर है. इसमें फोकस ऑन ह्यूमनिज्म है, जो प्री रेफेलाइट पेंटिंग्स, रफाइल्स पेंटिंग और उसके बाद पेट्रार्चियो और बोकैचियो की पोइट्री के जरिए पॉपुलर हुआ. इसमें है जो प्रोटेस्टेंटिज्म के
founding father Martin Luther teaching, Martin Luther 95 thesis, और प्रीस्ट एरेस्मस की टॉलरेंस की टीचिंग से जो है वो प्रमोट हुई। इसमें नई दुनिया को देखने का आगाज हुआ, न्यू वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट हुआ, यानी कि अमेरिका एज कॉन्टिनेंट जो है उसके साथ कांटेक्ट हुआ। हम सब पढ़ते हैं कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका और कोलंबस रीच्ड अमेरिका। उसके बाद इंडिया के साथ जो है वो इंग्लैंड का कांटेक्ट हुआ, और ये सारी जो बिगिनिंग है कॉलोनियलिज्म की वो शुरू हुई। इसमें एडवेंचर्स इंपॉर्टेंट थी, इसमें जो है वो सक्सेस इंपॉर्टेंट थी, हाई हाई एम्बिशंस यानी कि हाई और नोबल डिजायर जो है उन पे फोकस किया गया था। एंड पर्पस वाज मैन कैन लिव हिज लाइफ बाय हिज ओन विदाउट डिपेंडिंग अपॉन डिवाइन गाइडेंस, ब्लाइंड फेथ और सबमिसिवनेस। ये जो पुरानी चीजें थी इनसे निकल कर इंसान बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। बेहतर जिंदगी की राह इंसान के लिए अकल की राह थी, मजहब की राह की बजाय। इसी तरह इंसान के लिए ये समझा गया कि वो कोई बड़ा मकसद अपनाए और उसे कर गुजरे, हर वक्त किस्मत को ही सब कुछ ना समझे। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 बोलिए सर बोलिए। यस प्लीज। हेलो। जी मैं आखिर पे आपके क्वेश्चन जो है वो लेता हूँ, पहले जो है ना हम जरा इसको कंप्लीट करें। तो इस एज में कुछ कर गुजरने की तड़प थी, और इस कर गुजरने की तड़प को आप डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कैसे फॉस्टर्स जो है अपनी जो लिमिट्स है उनसे निकलकर ट्रांसग्रेस करता है और एक आउटरीचिंग स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम फास्टियन अर्ज भी कहते हैं। मार्लो के हीरो रेनेसांस की एक ग्रेट एग्जांपल समझे जा सकते। सबसे पहले हेनरी एट्थ के जमाने में जो रेनेसांस पोइट हमारे सामने आते हैं उसमें याट और सरे, मीन थॉमस याट एंड अर्ल ऑफ सरे, रियल नेम इज हेनरी हॉवर्ड। They are the poet of sonnets and songs. They translated sonnets of Petrarch, and also wrote their own sonnets and songs. Both were court poet of Henry VIII. Henry VIII had some enmity with Thomas Yard because he actually King Henry VIII fell in love and married Anne Boleyn, who was mistress of Thomas Yard. Afterwards, we see when Queen Elizabeth came into power, that's the glorious period of Renaissance. And in that age, we see writers like Sir Philip Sidney, Sir Francis Bacon, university weights like Christopher Marlowe, Thomas Kidd, Thomas Nash, George Peele, Robert Greene, जॉन लिली, उसके अलावा एडमंड स्पेंसर और जॉन डन। सो क्वीन एलिजाबेथ लिटरेरी लिहाज से रेनेसांस का पीक है, रेनेसांस का क्लाइमेक्स। बोथ इंग्लिश ड्रामा एंड इंग्लिश पोइट्री that reached to its apex, its climax
इन राइटर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी बिट्स कौन हैं और वो किस वजह से मशहूर हैं। इसी तरह मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है और मेटाफिजिकल पोइट जो है उनकी डिस्टिंक्शंस क्या हैं, विलियम शेक्सपियर की लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, हिस्ट्री प्लेज, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ये क्या हैं, यूनिवर्सिटी विट्स अपनी किस किस कंट्रीब्यूशन की वजह से फेमस है। लेकिन अभी जनरल इंट्रोडक्शन है तो उसमें एक तो रेफरेंस ये हुआ कि मैरी फर्स्ट जो कि कैथोलिक बिलीफ रखती थी और उसने प्रोटेस्टेंट या एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट की काफी परसिक्यूशन की। मैनी पीपल वर किल्ड, सो मैरी वाज लेबल्ड एज ब्लडी मैरी। Afterwards, when Queen Elizabeth came into power, Queen Elizabeth had Protestant tendencies. यानी दोनों स्टेप सिस्टर जो हैं, दोनों के ट्रेंड्स, दोनों की लीनिंग्स डिफरेंट थी। मैरी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस कर रही थी और क्वीन एलिजाबेथ जो है वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी जो नई नई इंग्लैंड में इमर्ज होना शुरू हुई थी उसको प्रैक्टिस कर। ये हेनरी एट का वो स्टेप जो कि एंग्लिकन चर्च की फाउंडेशन बना था कि इंग्लैंड का चर्च जो है वो इंडिपेंडेंट हो और वो रोमन कैथोलिक चर्च की हायरार्की के तहत ना हो। अब वो एंग्लिकन चर्च फ्लोरिश हुआ, अगरचे उसने बहुत कुछ अपने प्रोटेस्टेंट गाइड्स या प्रोटेस्टेंट टीचिंग्स ऑफ मार्टिन लूथर से इंस्पिरेशन हासिल की, लेकिन उसके बावजूद उसमें रिचुअल्स का कुछ इजाफा किया गया और वहाँ भी हाई चर्च और लो चर्च के कॉन्सेप्ट आए। लो चर्च वो है जहाँ कम रिचुअल्स हैं और हाई चर्च जहाँ रिचुअल्स से ज्यादा है। और ये को में रिचुअल्स कैथोलिक की तरह होनी चाहिए या प्रोटेस्टेंट की तरह ना होने के बराबर बहुत कम रिचुअल्स होना चाहिए। क्वीन एलिजाबेथ के बाद जब किंग जेम्स फर्स्ट who was sixth king of Scotland, he also became the ruler of England। उसने पॉलिटिकली भी कई स्टेप्स लिए जिसमें सबसे बड़ा तो यूनियन है, दैट इज यूनियन ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, एंड लेटर ऑन आयरलैंड also included in that union। Second, he authored or two works are attributed to his authorship, Demonology and King James version of Bible। बाइबल का मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन किंग जेम्स बाइबल है जो कि किंग जेम्स फर्स्ट से एट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस एज में एक तो रिलीजियसली प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और एक हिस्ट्री में गन पाउडर प्लॉट के नाम से एक कॉन्स्पायरेसी है। जब जेसुइट कैथोलिक क्रिश्चियंस ने बादशाह जेम्स का तख्ता उल्टने की कोशिश की थी और वह नाकाम हो गए थे, उनके बाद से जेसुइट की बहुत परसिक्यूशन की गई और कैथोलिक जो है वो बहुत जो है वो दब गए और उसकी बजाय प्रोटेस्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा राइज उनका हुआ। तो ये रिलीजियस लिहाज से कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट की तरफ, एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट की तरफ हमें शिफ्ट नजर आता है। लिटरेचर में थिएटर जो है वो फ्लोरिश करता है, पोइट्री फ्लोरिश करती है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो डेवलप लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा मडीवल
एज में, चाहे वो एंग्लो नॉर्मन ही क्यों ना हो, इंग्लिश लैंग्वेज एक डेवलपिंग फेज में थी। उसके स्क्रिप्ट के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। अब स्क्रिप्ट फाइनल है और उस जो है उसमें मार्वलस कंट्रीब्यूशंस की जा रही। किंग जेम्स के बाद जब किंग चार्ल्स फर्स्ट पार में आता है, तो वहां पर ये जो चर्च के इन्फ्लुएंस से एक नया तबका पैदा हो चुका था, जिसको हम प्यूरिटन कहते हैं। ये प्यूरिटन प्रोटेस्ट, इंग्लैंड के अंदर प्यूरिटन वैसे तो किसी जगह भी हो सकते हैं, और उनको इस सेंस में हम लेते हैं कि हु हैव फोकस ऑन प्यूरिटी ऑफ रिलीजन। प्यूरिटी ऑफ रिलीजन का मतलब ये होता है कि वो कहते हैं कि मजहब वो है जो एक्चुअल टेक्स्ट में है, और एक्चुअल टेक्स्ट बाइबल का टेक्स्ट है। तो बाइबल का टेक्स्ट जिस मजहब की बात करेगा, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, ना कि हम किसी प्रीस्ट या किसी चर्च के पीछे चलेंगे। तो प्यूरिटन प्यूरिटी की बात करते थे, टेक्सचुअल बाइबल की बात करते थे, लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल की बात करते थे, रिचुअल्स की बात नहीं करते थे, लिबर्टी और आज़ादी को बहुत ज़्यादा मानते थे। और लिबर्टी से यहाँ दोनों किस्म की आज़ादियाँ मुराद है। चर्च से भी, चर्च की ताकत से आज़ादी चाहते थे और बादशाह की ताकत से आज़ादी चाहते थे। इसलिए प्यूरिटन बादशाह के खिलाफ थे। उनकी मूवमेंट का एक स्लोगन अबोलिशन ऑफ मोनार्की था, बादशाहत का खात्मा। प्यूरिटन जो है उनमें हर तबके के लोग थे, यानी उसमें मिलिट्री मैन भी थे, उसमें रॉयल क्लास के मेंबर भी थे, और उसमें पोइट्स भी थे, प्रीस्ट भी थे। जॉन मिल्टन खुद एक बड़ी एग्जांपल है प्यूरिटन पोइट्स की। एंड्रयू मार्वल जो कि मेटाफिजिकल पोइट है, वो भी प्यूरिटन पोइट में एक बड़ा नाम बनता है। ड्राइडन, जॉन ड्राइडन जो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, यानी पोइट है, ड्रामाटिस्ट है, प्रोलिफिक राइटर है, हर जॉनरा में उसका नाम है। तो ड्राइडन खैर एक और तरह का इंसान था, वो अपनी सिंपथीज चेंज करता रहता था, लेकिन कम से कम क्रोमवेल की लाइफ में ड्राइडन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्यूरिटन था। तो चार्ल्स फर्स्ट के जमाने में शायर जो थे वो दो तबकों में तकसीम हो गया, हु वर द सपोर्टर ऑफ द पोएट एंड हु वर सपोर्टर ऑफ प्यूरिटन। जो बादशाह के तरफदार थे उनको कवेलियर पोइट्स कहते हैं। बेन जॉनसन इज फेमस कवेलियर पोइट्स एंड ड्रामाटिस्ट। प्यूरिटन पोइट्स वो हैं जो किंगशिप के खिलाफ है, किंग चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ है, और वो लिबर्टी की बात करते हैं, पाइटी की बात करते हैं, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। और ये इनमें जॉन मिल्टन जो है वो इंपॉर्टेंट प्यूरिटन पॉइंट। तो ये रेनेसांस एज के कुछ जो बेसिक पॉइंट थे, कि वो क्वेश्चन जो कि मडीवल एज में पैदा हुए थे कि हम अपने आप को प्लेग से कैसे बचाएं, हम अपने आप को रिलीजियस कंट्रोल से आज़ाद कैसे करें, हम कोई बड़ा कारनामा कैसे करें, यानी हाई एम्बिशन, हाई गोल कैसे रखें, फिर हम कौन है, इसका जवाब ढूंढने के लिए एक इंग्लिश स्टेट हो, एक इंग्लिश लैंग्वेज हो। तो इंग्लैंड एज नेशन स्टेट और इंग्लिश एज नेशनल लैंग्वेज इमर्ज किया है रेनेसांस एज में। बिकॉज ये एक्सपेंशन की
इम्प्रूवमेंट है ये फैलने की, दूसरी तरफ इसमें नेशनल आइडेंटिटी पर फोकस। अप्रोच है और मैकियावेलियन अप्रोच ये थी एंड जस्टिफाई। तो अभी इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, आप लोगों के जो क्वेश्चन है उस पर रिस्पॉन्ड करें। प्लीज रेज योर क्वेश्चन। हेलो हेलो Yes, sir. प्लीज आस्क क्वेश्चंस। सर ये प्रैग्मेटिक अप्रोच के बारे में बता दें क्योंकि तब वॉइस डिस्टॉर्शन हो जाता था तो मुझे पता नहीं चला उसका। जी, प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब ये है कि हम वो फैसले करें जो प्रैक्टिकली हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस या प्रैक्टिकल नेसेसिटी पे फोकस करें, ना कि आइडियलिज्म। इसमें जो एक स्लोगन लाइक फ्रेज थी वो मैकियावेली की ये थी कि एंड जस्टिफाइज मींस। एंड जस्टिफाइज मींस का मतलब ये था कि मकसद हासिल होना चाहिए चाहे किसी भी तरीके से हो, बाय हुक और बाय क्रूक, यानी किसी अच्छे तरीके से भी हो सकता है, किसी जो है वो मनफी तरीके से भी हो सकता है, लेकिन मकसद जरूर हासिल होना चाहिए। तो इस बात को रिलीजन के लिए एक थ्रेट समझा गया। अगरचे प्रैक्टिकली तो हो सकता है लोग पहले भी इसी को फॉलो करते हो, लेकिन अब बकायदा से इसको एक नॉर्म के तौर पर, एक प्रिंसिपल के तौर पर कबूल किया जा रहा था। हम इंग्लिश राइटर जैसे क्रिस्टोफर मार्लो और फ्रांसिस बेकन है, वो खास तौर पर इस आइडिया को बहुत प्रमोट करते हैं। बेकन अपने एसेस में और मार्लो अपने ट्रेजिक हीरोज बैराबस, डॉक्टर फॉसिस और टेमलिन के जरिए के एंड जस्टिफाइज मींस की पॉलिसी दुरुस्त है। शेक्सपियरियन कैरेक्टर भी काफी हद तक इस अप्रोच को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड जस्टिफाइज मींस यानी एंड यानी मकसद, मींस वो मींस जिससे वो मकसद हासिल करना था। जब मकसद हासिल हो जाए तो जराए को कोई नहीं पूछता कि किस जराए से है। तो ये प्रैग्मेटिक अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी आलिया प्लीज। सर वो मरियम क्वेश्चन नहीं प्लीज। था, गलती से अनम्यूट हो गया था। क्वेश्चन नहीं है, कोई सब मरियम प्लेयर प्लीज। है। ओके मरियम। सर ये हाई एम्बिशंस और एज ऑफ क्वेश्चंस को प्लीज रिपीट कीजिएगा। हाई अम्बिशन का मतलब तो आप सबको मालूम ही है कि ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मकसद होने चाहिए। यस सर। ठीक है, अब वो चाहे अपने इक़्तिदार को फैलाने और बढ़ाने के मकसद हो, आप अपनी दौलत ज्यादा करने का मकसद हो, बहुत ज्यादा इल्म हासिल करने का मकसद हो जैसे डॉक्टर फॉस्टिस का है,
तो कोई भी हाई एम्बिशन जो है वो हो सकता है। तो आपका जो मकसद है वो छोटा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा हो कि इंसान के जो है वो ग्रैंडर के साथ मैच करे। ये इसमें मुराद था।